here to discuss the admission process for engineering colleges in Maharashtra. So we are waiting for a few more students to join. Till then, you can tell your other friends so that they can also get benefited. The wise words of Milind Joshi sir. So you can invite your other friends as well from your other. It is not necessary that they should be from SP classes only. Okay, you can tell your other friends also. ओके बट एटलीस्ट आप अपने क्लासमेट्स को तो एक पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम पे नहीं चेक करते हैं, टेलीग्राम के साथ उतने रेगुलर नहीं है। तो काइंडली अगर हो सके तो अपने अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार बोलिए सबको के ज्वाइन करें फटाफट, सो दैट वी कैन मेक दिस मोर यूजफुल। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ अभी बीच में, जब मिलिंद सर समझा रहे होंगे तो कोई क्वेश्चन ना पूछे। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। टिल देन आप लोग सुनते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन अभी तब तक जब तक हम नहीं बोले तब तक मत कीजिए। एंड किसी के भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो अपने नोटबुक और पेन ले लें पास में, और जितना मर्जी हो सके वो क्वेश्चन नोट कीजिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग 15-20 मिनट अलग से सेशन लेंगे क्वेश्चन के ग्रुप में। सो वी आर वेटिंग फॉर 5 more minutes so that more and more students can join in. Okay. Milind sir, you can hear me? Yeah, sir. Hearing you. Okay. आपकी वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो रही है सर। अभी आ रही है बराबर सर? आपकी आवाज अब बराबर आई है, पहले के मुकाबले काफी ठीक आ रही है। ओके ठीक है सर, स्टूडेंट्स आते रहेंगे। लेट अस स्टार्ट। Yeah, we'll start. So students, we will keep admitting students further as well. तो you can, ठीक है सर, आप स्टार्ट कीजिए। Okay, so all of you welcome on behalf of me and our CL Educate Limited. So today's seminar we are having, so we can help you to fill the forms. Anything, any question you can ask at the end. We'll have that question and answer session as discussed by sir. So at this moment we'll go through it. We'll understand the steps, how it has been, how it has to be done, what steps you have to do, क्या क्या procedure follow करने हैं इसमें से आपको। तो it's a procedure where you will be registering, so we'll be going towards registration, how to perform the registration. So first of all, to start with, you have to go to the particular site that already I have written there. If you are watching the screen,
www.mahacet.org. This is the site where you will be registering yourself. Once you go through this site and enter through Google, I advise please do it on your desk, computer, or laptop. It is more easy than the mobile phone. Okay, now coming to the first slide, when you go through this, on the site www.mahacet.org or org, whatever you say, you'll get this admission portal for AY admission year 2020-21 is opening here. You will see a lot of things there. Applying for CAP, click on respective. So once you open this portal, you can see here on the left side, undergraduate courses. On the left side, undergraduate courses, B and B Tech, B and B Tech new. Just you have to click there. Once you click there, you will getting this thing. So this site will open, page will open. If you see there, new registration and already registered. So here you have to start with the new registration. So I have to, this is already registered means once you get your registered, और फिर बाद में आपको खोलना है साइट वापस, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, तो उसके लिए आप रजिस्टर हो तो आप चेक करने के लॉगिन कर सकते हो. तो पहले आपको यहाँ पे अभी रजिस्टर करके आपको आईडी मिलाना है, यूजर आईडी along with your password. तो पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर में जाना है. So once you get the new register, process will start. तो अभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो एंटायर शेड्यूल मिलेगा आपको. क्लिक हियर फॉर एंटायर शेड्यूल. आपका जो एडमिशन प्रोसेस का जो शेड्यूल है वो पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है. एज यू नो, एडमिशन का फॉर्म्स कल से स्टार्ट हुए थे 9 to 15 अप टू 11:59 PM आपके एडमिशंस के फॉर्म स्टार्ट होंगे. आपको फिल करना है एडमिशन फॉर्म, स्क्रूटिनी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब ऑनलाइन है. जैसे हम लोग आगे जाएंगे दैट विल गो ऑन डिस्कसिंग. So 9 to 15 is your scheduling where you will be filling the registration form. फिर जैसे हम लोग ने पहले सेमिनार में डिस्कस किया था कि आपको उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा आपका. प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद then you will get the final merit list. If you have some grievance, you can check that. So that will happen, and then your cap round 1 and cap round 2 will start. So this year only there are 2 cap rounds, cap 1 and cap 2, because already you have wasted lot of your time in the pandemic. So naturally आपका term जो है वो likely 4 January 2021 से start होने वाला है. 4 January 2021. So 1 month from today, say less than 1 month from today. And last date for all admission procedure, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि बाद में I may forget. इंस्टीट्यूशनल एडमिशन होगा आपका, या तो आपको कोई कोटा एडमिशन है, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे कैप राउंड होने के बाद, तो वो लास्ट डेट डीटी का 15 जैन है. 15 जैन. इट इज मोर सेफर. 14 जैन तक आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं. कैप राउंड के बाद का बात कर रहा हूँ मैं, जो इंस्टीट्यूशन कोटा वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए. सो दैट लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन विल बी डन ऑन 14 जनवरी. उसके बाद कोई भी फॉर्म आपका लिया नहीं जाएगा एडमिशन. So that is the last date that you should keep in mind. Now to start with the registration process, आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जिसको एलिजिबिलिटी देखना है. यहाँ पे लेफ्ट में देखो चेक योर एलिजिबिलिटी है. नाउ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है. दिस ईयर 45% they have given you PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स. जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, बीजे, एनटी, ये सब का चेंज करके उन्होंने 40% कर दिया. So there are 45% for open and 40% for
द अदर कैटेगरीज. अगेन फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है आपको, एंड केमिस्ट्री के प्लेस में आप आपका आईटी का मार्क्स डाल सकते हैं, सीएस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज आउट ऑफ 200, मेक इट आउट ऑफ 100 एंड देन पुट, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो जाएगा. सो 45 फॉर ओपन एंड 40 for reserve category. So please you can check your eligibility there. Now to start with the, once you click new registration, और यही स्लाइड में जा रहा हूँ. So if I see this slide again, I'll just go through that slide. सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया. ये आईटी और कंप्यूटर साइंस वाला पॉइंट एक बार दोबारा क्लियर करेंगे क्या? नहीं, जिसका फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री मिला के 45% नहीं हो रहा है, 300 में से 135 मार्क्स, 135 मार्क्स, तो जनरल और रिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी. ओके. Earlier it was 50% and 45%. Now it has come down to 45% and 45% for open category and 40% for reserve category. तो जिसका 45% नहीं बन रहा है तो पीसीएम वो, हाँ, पीसीएम में तो केमिस्ट्री को वो रिप्लेस कर सकता है. केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से. कंप्यूटर साइंस आउट ऑफ 100 यू हैव टू कन्वर्ट. 200 में से 150 आ रहा है आपको, और फिजिक्स की जगह आईटी ले सकते हैं. नहीं, फिजिक्स और मैथ्स को नहीं रिप्लेस हो सकता है सर. केमिस्ट्री की जगह चेंज कर सकते हैं. केमिस्ट्री की जगह आपका आईटी रहेगा तो आईटी रिप्लेस कर सकते हैं, सीएस रहेगा तो सीएस, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या एंड आल्सो बायोलॉजी इज आल्सो अलाउड. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मार्क्स है, मान लीजिए किसी के 104 है, फिजिक्स और मैथ्स, और तो और मैथमेटिक्स में अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो मैथमेटिक्स को रिप्लेस करके वो नहीं, नॉट पॉसिबल. ओनली यू कैन रिप्लेस केमिस्ट्री मार्क्स. अच्छा, तो खाली केमिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स नहीं है किसी के, तो उसकी जगह आईटी या वो ले सकते हैं. फिजिक्स और मैथ्स आपको कंपलसरी प्लस करके रखने हैं, और फिर वो केमिस्ट्री के मार्क्स मिला के आपके 135 नहीं हो रहे, तो आपको लग रहा है कि आपके सीएस में ज्यादा मार्क्स है या आईटी में ज्यादा है, बायोलॉजी में ज्यादा है, तो वो रिप्लेस करके आप आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है सर, थैंक यू. या सो स्टार्ट विद द न्यू रजिस्ट्रेशन. ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट 3 इयर्स का कट ऑफ 2018, 19 एंड देन 17, 18, तो 3 इयर्स का लास्ट कट ऑफ दिया है कि कौन से राउंड में कितने पर कौन सा कॉलेज का राउंड कट ऑफ हो गया था, व्हाट वाज द लास्ट मेरिट नंबर, एसएमएल नंबर. सो दैट वाज हैज बीन गिवन. सीट मैट्रिक्स भी है, पर वो अभी तक डाला नहीं है. जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा उसके नीचे. यही पेज के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे. हाँ, सीट मैट्रिक्स सर जो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो उसके बाद ही आएगा, यानी 25 के बाद ही आएगा वो आएगा, तभी वहां पे ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. यही पेज के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सब दिया हुआ है. स्क्रॉलिंग करके नोटिफिकेशंस है, ये सब आपको मिलेगा. नाउ स्टेप 1, सिलेक्ट द कैंडिडेट टाइप आएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. अब जैसे प्रोसीड करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इन दिस candidates have to choose the common examination given for the engineering and technology course. First, candidates are asked whether they have passed MSCT 2000 exam. If candidate clicks on the yes button, the candidate has to enter the application form number or seat number of the common examination and click on the check CT detail button. The candidate will then be shown the marks obtained in the examination. तो first step आपका रहेगा, जैसे आप जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप MSCT दिए है तो MSCT को यस कर दीजिए. MSCT का स्कोर आ जाएगा, चेक CT डिटेल्स बोलेंगे तो आपका CT का एप्लीकेशन नंबर और वो आप डाल दीजिए, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड सीट नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन. यू विल गेट द डिटेल्स. आपके मार्क्स देखो यहाँ पे नीचे आ रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल PCM का स्कोर क्या आ रहा है वो आ जाएगा. दैट विल गिव द percentile what you have got individually, and your total PCM percentile will come. You can check it with the check details. The candidate will show the marks obtained, and then you have to save and proceed. If you are not appearing 2020, जिसने अपेयर नहीं किया है CT, खाली JEE किया है, तो वो नो बटन टिक करेगा. तो ये फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा. तो ये फर्स्ट आपका स्लाइड आएगा आपको, जैसे आप रजिस्टर में एंटर करेंगे कैंडिडेट टाइप, उनसे कैंडिडेट है आप, तो यू हैव टू टिक यस. देखो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, अपेयरिंग फॉर MSCT, यस.
MSCT number, application number डाल रहे हैं आप, then you are putting your roll number, then you have to check the CET details. You will get this, then you save and proceed. Save and proceed करेंगे तो आप next इस पे आ रहे. Then the candidates are asked if you have passed JEE Main 2020 exam. If the candidate clicks yes button, the candidate has to fill in the next step information. तो आप yes करके उसके डिटेल्स आप भर सकते हैं. अदरवाइज कैंडिडेट हैज टू क्लिक ऑन नो बटन. आप नहीं दिए है जेई एग्जाम, यू आर नॉट गिवन एनी जेई एग्जाम, मे बी इन जनवरी attempt or the second attempt in August month, you can click no. But if you are given any of the one exam, you can click yes. आगे जाके आप जेई का टोटल आएगा, आगे फॉर्म में है, वहां पे आपको जेई मेंस के सब डिटेल्स भरने हैं. देन फॉरेन नेशनल पूछा है उसने, आर यू फॉरेन नेशनल एनआरआई, तो आपका मोस्टली सबका नो ही रहेगा. देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम आपका एचएससी रहेगा. उन्होंने डिप्लोमा टिक किया, सो देयर आर टू टाइप्स. डिप्लोमा ऑल्सो करके भी कोई लोग जाते हैं वहाँ पे, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर में भी आते हैं. तो यू हैव टू क्लिक फॉर एचएससी. क्वालिफाइंग एग्जाम आपका एचएससी है. हमारे जो सीएल के कैंडिडेट्स है, so everybody has given their HSC exam, so your qualifying exam will be HSC. So this is the first few steps. MSCT आपको यस करना है, जेई दिया है आपने तो यस करना है. फॉरेन नेशनल आप नहीं है, नो है. दिस इज फॉरेन नेशनल, एनआरआई स्टूडेंट्स, नॉन रेसिडेंट, देन ओसीआई स्टूडेंट्स, पीआर, ये सब. और फिर जम्मू कश्मीर स्टेट्स कैंडिडेट है उनको, तो हम उसमें से कोई रहेगा जम्मू कश्मीर वगैरह, तो यू कैन मेक इट यस. देन अगेन सेव एंड प्रोसीड. Then you go to the next step. Personal information है next step में, something very easy. I am not going on in detail. Online registration form open होने के बाद candidate should first submit their full name, father's name, फिर आपका gender. ये drop down box है, उसको click करो, male, female, transgender आएगा, तो you can put your gender, religion, Hindu, Muslim, whatever, Christian, you can put your religion there. मदर टंग जो भी आपकी लैंग्वेज है वो पुट कर सकते हैं. आधार नंबर ऑल्सो यू हैव टू पुट. देन कम्स योर मदर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, रीजन आप कहाँ पे है, रूरल में रह रहे या सिटी में रह रहे, तो वो ऑप्शंस आ जाएंगे, वो करना है. देन एनुअल फैमिली इनकम आपको डालना है और नेशनल इंडियन. नाउ सी दैट ये फैमिली इनकम आप जब यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. those who are applying for EWS quota, economically weaker section, वो आगे जाके मैं बता रहा हूँ आपको. एंड TFWS कोटा, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, तो ये दो कोटा जो है वो फी कम करने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल TFWS के जो सीट्स रहते हैं, तो 60 सीट्स कॉलेज में है, तो उसके ऊपर 5 सीट एक्स्ट्रा रहते हैं. तो ये बाकी कोई रिजर्वेशन में TFWS कोटा एंड EWS कोटा नहीं आता है. इट इज 60 इंटेक है, तो 60 के ऊपर एक्स्ट्रा सीट्स आर गिवन for this quota for the open category. इसका मेन क्राइटेरिया है 8 लाख के नीचे इनकम होनी चाहिए. इट इज आल्सो फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, नोमैडिक ट्राइब, विजय, एनटी, इनको भी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट मांगते हैं उसको भी 8 लाख के नीचे आपका इनकम होनी चाहिए, तो ही सब आपको रिजर्वेशन, फी, कंसेशन ये मिलता है. तो प्लीज सी दैट यू फिल द एनुअल फैमिली इनकम प्रॉपरली. आप वो कोटा में जाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा आगे, इनकम सर्टिफिकेट. नहीं जाना चाहते देन यू कैन पुट एनी इनकम, दैट इज नॉट अ बिग इशू एज सच. बट इफ यू वांट दिस, यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट योर फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख. तो मैंने पहले सेमिनार में हम लोग ने बताया था कि वो कैसे बनाना है, क्या करना है. तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स है. कैंडिडेट्स फुल नेम एज अपीयर ऑन HSC मार्कशीट. प्लीज सी दैट, आपके हिसाब से मत भरो. आपका SSC का मार्कशीट के ऊपर जो नाम है that only you have to put. Please see that, don't make a silly mistake. Please check with your HSC marksheet, keep it in front of you and then fill it. Don't be in a hurry to just complete the work. Hardly a form filling will take you 1 hour, maximum 1 hour if you are doing it properly. So personal information आएगा. Next slide आएगा आपका communication details आएगा. So whatever communication address you can fill, address line 1 2 3, state महाराष्ट्र, तालुका जो भी है वो डाल दीजिए, पिन कोड अपना परफेक्ट डालिए, डिस्ट्रिक्ट
आपका विलेज नहीं है तो आप डैश कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर प्रॉपरली डालिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन नंबर, पिन कोड, देन मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईमेल आईडी। एंड फॉर आवर स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट में बॉम्बे में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। बॉम्बे मेन आता है और बॉम्बे सबब आता है, जो बैंड्रा के आगे है टुवर्ड्स अंधेरी साइड। ऑल इज इन मुंबई सबब। विरार, वसई, they can put the Thane district, whatever it is, and depending upon what district they are lying. So please select your districts, village, dash कर सकते हैं. Then taluka also we can put Bombay suburb only. State is Maharashtra. Proper pin code is important, and the mobile number. ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपकी नियरली। अभी यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देखो, if you see the slide, one time password OTP will be sent to the mobile number given below for activation of your login. Kindly make sure that mobile number is correct. The mobile number will be used for all future communications. So the mobile number what you are giving here, it's very 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 important. ये mobile number जो दे रहे हैं आप, ये काफी important है। email ID also, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, डीटी सेल और सीटी सेल की तरफ से, तो इट विल बी ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। व्हाटएवर प्रोग्राम चेंजेस होंगे, हाँ, इट इज ऑन द साइट, बट देन आल्सो कम्युनिकेशन इज देयर ऑन दिस नंबर, बिकॉज लॉगिन के लिए अभी यही नंबर लगने वाला है। तो वन टाइम पासवर्ड आने वाला है, वो कैसे जनरेट करना है वो आगे के स्लाइड में देखना है। तो ये आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स फिल करने हैं आपको। Now comes password के लिए। See, most of the important thing at this stage of online registration, communication होने के बाद, the candidates have to re-enter the password as instruction on the screen to create an account on the website and click on the save and proceed button. तो पहले आपको choose password करना है। देखो, choose your password और फिर confirm password and then security code आपको डालना है, captcha code. So whatever it is given and you have to proceed. तो वहां पे पासवर्ड कैसे होने से वो भी लिखा हुआ है उन्होंने। See, the password must be 8 to 13 character long. 8 to 13 character, at least one upper case alphabet होनी चाहिए, at least one lower case, मतलब minimum one upper case और lower case होनी चाहिए। पासवर्ड में at least one numeric value, and password must have at least one special character. Special characters hashtag, at the rate of, greater than, परसेंटेज का साइन है, एंड व्हाटएवर इट इज। सो स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो मिनिमम 1 होनी चाहिए, एंड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होने चाहिए, मतलब 8 होनी चाहिए आपको। तो आपको आपका पासवर्ड जनरेट करना है, वो आपके पास रखना है। चूज योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म जैसे आप कर रहे हैं, यू कैन सेव एंड प्रोसीड। सो ये पासवर्ड के डिटेल्स रहेंगे। जैसे आप सेव करेंगे पासवर्ड एंड दिस, द नेक्स्ट थिंग, आपको ओटीपी आएगा फोन नंबर पे। ओटीपी विल बी सेंड टू योर, ओटीपी विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर मेंशन बाय द कैंडिडेट थ्रू द सिस्टम। जो आपने मोबाइल नंबर डाला है कम्युनिकेशन के नीचे एड्रेस में, तो आपको पूरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। वंस यू गेट द ओटीपी ऑन द मोबाइल नंबर, एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन द मोबाइल एंड क्लिक वेरीफाई ओटीपी। यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है एंड वेरीफाई करना है ओटीपी को। इफ यू डू नॉट रिसीव ओटीपी, क्लिक ऑन रीट्राई। तो इसको रीट्राई का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप रीट्राई कर सकते हैं वॉट एवर थिंग। तो रीट्राई करके आपको ओटीपी आ जाएगा फंक्शन करके। सो वेरीफाई भी हो जाएगा। सो वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस, इफ यू सी, DT will send you a one-time password on your mobile. Verify the mobile number. After receiving OTP, please enter it. After verification of OTP, you will get the application ID to complete your application form. तो ये अभी फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आईडी मिलेगा, details of application number received. The application number will be given to the candidate through the system, assuming that the information filled by the candidate is correct. The application number, or you can see user ID, to be preserved throughout the process by the candidate. This is a very important
ID और you can user ID और application number you can say, क्योंकि ये आपको लास्ट तक एडमिशन होने तक, आपका फाइनल एडमिशन होने तक, कॉलेज लगने तक और फी पेमेंट तक, ये हर जगह आपको लॉग इन करने पड़ेगा, तभी लगेगा। एप्लीकेशन आईडी एंड योर पासवर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन दिस समवेयर, डोंट फॉरगेट इट। नहीं तो फिर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स खुद का ही पासवर्ड एंड देन दे स्टार्ट ट्राइंग ट्रायल एंड एरर, ये सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो आपको वापस रिक्वेस्ट करके वो पूरा जनरेट करने पड़ता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, डीटी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करके ईमेल के, सो डोंट गो इन दैट। वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी लिखा है, प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी एंड सिलेक्टेड पासवर्ड फॉर फ्यूचर लॉगिन्स, कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू disclose or share the password with anybody. CET shell will not be responsible for violation of misuse of the password. तो प्लीज कोई भी पासवर्ड जब तक आपका एडमिशन खत्म नहीं होता है तो आपके फ्रेंड्स को वगैरह मत दीजिए, प्लीज सी दैट यू कीप इट योरसेल्फ, क्योंकि वो जब भी फॉर्म भरना जाएगा, कैप राउंड स्टार्ट होगा, तो कॉलेज फिल करते समय भी ये पासवर्ड से लॉग इन करना है हमको, तो पासवर्ड या एप्लीकेशन से, तो कोई आपका कोई अल्टर कर सकता है, तो आप पासवर्ड दीजिए और एप्लीकेशन आईडी दीजिए। Candidate can change his password login if desired. So remember to log out of the session. So जब भी आप इन कर रहे हैं, लॉग आउट करके बाहर जाइए, सेशन ओपन मत रखिए, so somebody can do some mischief with that. So please see that एप्लीकेशन आईडी आपको लिख के रखना है, पासवर्ड आपके पास लिख के रखना है, शेयर नहीं करना है किससे। तो दिस कवर्स द स्टेज 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आप रजिस्टर हो गए, एप्लीकेशन आईडी आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है आपका पासवर्ड मिल रहा है। अभी इसके आगे और कुछ स्टेप्स है, 9 स्टेप्स है इसके आगे जो आपको भरने हैं, देन योर एप्लीकेशन विल बी टोटली ओके। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। After registering the entire application number, enter the application number online. Enter the application number, आपको लॉग इन करना है, रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन, तो रजिस्टर आप हो गया अभी, तो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। जो वहां पे 2 ऑप्शन थे ना फर्स्ट स्लाइड पे, अनरजिस्टर और रजिस्टर, तो अभी अभी रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन दिखाया है, देखो। आफ्टर रजिस्टरिंग ऑनलाइन, एंटर द एप्लीकेशन नंबर issued by the computer and the password mentioned at the time of register on the login screen. Click the sign in button. मतलब ये होने के बाद आप register candidate हो गए अभी, now you are registered for the admission process, so you can go to the register candidates and log in, application ID, password और sign in करके आप फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हैं, आगे के जो भी आपके डिटेल्स है भरने आपको। एंड प्लीज सी दैट IP एड्रेस मॉनिटर होते रहता है, so again I am repeating, please keep your password and application ID with you only. Okay, next step, अकाउंट लॉगिन के बाद important thing, a total of 10 stages of applications are shown on the candidate login dashboard, out of which the first stage has been completed. वो डैशबोर्ड के आपको दिखते जाएगा, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं रजिस्टर होने के बाद, तो आपको दिखते जाएगा कि कौन से स्टेजेस आपको करते जाने हैं और भरने हैं। इसमें से ये पहला स्टेज था कि आपने आपको रजिस्टर कर लिया, यू गॉट द एप्लीकेशन आईडी, यू गॉट द पासवर्ड एंड यू आर लॉग्ड इन, so out of which the first has been completed. Now we'll move for the remaining stages as required for the candidates to complete. Will not be able to send scrutiny till the 9 steps on the dashboard are completed. Also, a message about the current status of the application is displayed on the main page. So 10 stages का procedure है, first step हम लोग ने complete कर लिया है, so now we'll move to the next step. Okay. Stage
टू आपको कैंडिडेट का टाइप सिलेक्ट करना है. ऑलरेडी ये हम लोग ने सर ने मेरे ख्याल से हम लोग ने वो लास्ट सेमिनार में भी डिस्कस किया था, तो भी एक बार विल गो थ्रू इट फास्ट. टाइप ए कैंडिडेट महाराष्ट्र, टाइप बी, टाइप सी कैंडिडेट, टाइप डी, टाइप ई एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट ओएमएस कैंडिडेट्स आउटसाइड महाराष्ट्र. तो आपको ए टाइप में कौन से कैंडिडेट आते हैं? Candidates whose domicile and birth is in Maharashtra and candidates from Maharashtra who have passed 10 and 12 exam, equivalent exam in this category. तो बर्थ महाराष्ट्र में 10 12 आप पास हो रहे, ये टाइप ए हो गए. देन टाइप बी, candidates are categorized having the domicile, birth certificate of either the candidate or mother or father, and the 10th pass of the candidate has been from a state outside Maharashtra and 12th or equivalent has been done from Maharashtra. मतलब टाइप बी में कौन आ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल मतलब यू हैव अ सर्टिफिकेट दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर 15 इयर्स, या तो आपके मदर और फादर महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, आपने 10th स्टैंडर्ड आउटसाइड महाराष्ट्र से पास किया है और 12th स्टैंडर्ड आपने महाराष्ट्र से पास किया, तो ऐसे टाइप बी में आते हैं. और टाइप सी कैंडिडेट till the last day of filing of application, the children of the employees whose mother and father are in the central government service. तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में उसके फादर मदर है, ट्रांसफर पे आते हैं, तो उनको टाइप सी में डालते हैं. एंड टाइप डी, इन दिस candidate whose parents are serving in government office in Maharashtra or in the office of authority of government service. महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ट्रांसफर होता है कभी, तो उनके टाइप डी है. टाइप E candidates who have passed 10 and 12 from Maharashtra Karnataka border fall in this category. तो हमारे इधर इसमें कोई नहीं है क्योंकि बेलगांव और वो साइड के कर्नाटका बॉर्डर, बेलगांव एंड इस जो महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर के जो विलेजेस है, बट दोज आर इन कर्नाटका बट दे आर मराठी स्पीकिंग, सो उनके लिए है. एंड कैंडिडेट टाइप अदर देन दिस इज योर outside from Maharashtra. Candidate from outside Maharashtra can only apply for the JEE quota. ऑल इंडिया कोटा जो है 15% मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था पहले सेमिनार में, तो उसके लिए ही वो अप्लाई कर सकते हैं जो महाराष्ट्र के नहीं है. तो मोस्टली हमारे काफी स्टूडेंट्स ए और बी आते हैं. आई थिंक ए में ही काफी स्टूडेंट्स आते हैं, मे बी सम ऑफ यू मे बी इन बी कैटेगरी, दोज आर गिवन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र एंड अपीयर 12th ईयर एंड योर फादर एंड मदर और यू आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र. तो आपको प्रॉपर ये सिलेक्ट करना है कैंडिडेट. सो सिलेक्ट कैंडिडेट टाइप आएगा, ये आपका नेक्स्ट है. I'll go to the slide. First, candidates type as above. Accordingly, candidates should select in which they are falling. Click and save and proceed ahead. तो आप A में है, B में, C में, तो आपको हर एक के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं वो लिखा है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने, लास्ट में अपलोड है ऑल सर्टिफिकेट्स, तो वो स्क्रूटिनी के लिए अपलोड करने, तो आपके पास ये होनी चाहिए. देखो टाइप ए में आप डाल रहे हैं, इफ यू आर पुटिंग योर टाइप ए कैंडिडेट है आप, तो कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड आल्सो एचएससी और डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट हु इज एदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र. तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी के 10th और 12th की मार्कशीट, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे. टाइप बी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका फादर या मदर का, या तो 10 12 का तो सर्टिफिकेट लगने वाला ही है, तो वो भी लगेगा. तो स्पेसिफिक जो आप टाइप में जा रहे हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, और यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड फॉर योर टाइप. सो नॉर्मली हमारे ए टाइप में है, तो टाइप ए में आपको 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, आपके जेईई और मेंस का और एमएससीटी का मार्कशीट एंड डोमिसाइल, ये काफी चीज लगने वाले. डोमिसाइल और बॉर्न इन महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज लिविंग भी चलता है. सो ये आपको पहला आएगा, आप टाइप ए मार्क कर सकते हैं. देन उसके नीचे होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स आता है. जैसे आप टाइप ए में जाएंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, पहले वाले साइड में इफ आई गो बैक अगेन, तो स्लाइड एबीसी आएगा, आप प्रोसीड करेंगे सिलेक्ट करके कैंडिडेट टाइप. तो आपको नेक्स्ट डिटेल आएगा होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स.
टाइप ऑफ कैंडिडेट टाइप ए डाल दिया, महाराष्ट्र टाइप ए। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए, बर्थ सर्टिफिकेट लिया है, यू कैन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, व्हाटएवर यू हैव वो अवेलेबल रहेगा, वही डालने पड़ेगा आपको। ये ड्रॉप बॉक्स आप ओपन करेंगे तो वहां पे जो अवेलेबल सर्टिफिकेट्स है वो लिस्ट में से आप एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव द बर्थ सर्टिफिकेट, वेल एंड गुड, यू कैन पुट इट। देन सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच यू हैव पास एसएससी। तो आपका एसएससी कहाँ से पास हो गया है? 10th स्टैंडर्ड। जैसे आप कांदिवली, मालाड, बोरिवली से पास हो रहे हैं तो मुंबई सबब डिस्ट्रिक्ट आएगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच एचएससी पास हुआ 12th स्टैंडर्ड, वो भी मुंबई सबब आएगा। आपका कॉलेज वहां पे बॉम्बे साइड रहेगा तो प्लीज पुट बॉम्बे मेन, कॉलेज के ऊपर रहेगा, वो आप पुट कर सकते हैं। देन तालुका, वो भी बॉम्बे आएगा। देन कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर होम यूनिवर्सिटी। आपका होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी आएगा। You have to put Mumbai University as your home university because we are residing in Mumbai. Mumbai University के अंदर आपके 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे मुंबई मेन, बॉम्बे, मुंबई सबब, थाना, रायगढ़, रायगढ़, पालघर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई आते हैं। फिर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी टिल द बॉर्डर ऑफ गोवा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी आपके होम यूनिवर्सिटी इज योर मुंबई यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टू पुट दैट। ये हो गया आपके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो गया, टाइप आपका हो गया, होम यूनिवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी डिटेल्स। ये कैटेगरी डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कैटेगरीज यहाँ पे आएंगे आपको, सो विल जस्ट गो थ्रू दैट। ये देखो कैटेगरी डिटेल्स है। सो आपको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी होती है तो ओपन कैटेगरी आएगा पहले, उसके बाद एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर ओबीसी कैटेगरी आएगा। ओबीसी में यू विल हैव सब कैटेगरी ऑफ एनटी, नोमैडिक ट्राइब्स 1 2 3 4 या ए बी सी डी, विजय, विभक्ति जाति उसको बोलते हैं। तो ये सब रिजर्वेशंस आएंगे उसमें, तो उसको आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है आपका। नाउ कमिंग टू द ओपन कैटेगरी, पहले आप कैटेगरी के ड्रॉप बॉक्स में इधर चेक करेंगे तो क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो जिसका ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो आपको ओपन में डालना है। अभी ओपन कैटेगरी में आप जैसे ही डालेंगे तो आपको ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, आगे पूछेंगे, वंस यू एंटर दिस आपको पूछेगा वो कि आपको ईडब्ल्यूएस कोटा लेना है या नहीं लेना है। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, जो हम लोग ने लास्ट सेमिनार में डिस्कस किया था कि वो आपको आपके तहसीलदार ऑफिस में मिलेगा। तो saying that your family income is less than 8 lakh, your family income is less than 8 lakh, तो वो आपको भरना है। ईडब्ल्यूएस कोटा लेना है या नहीं लेना है, लेना है आपको तो यू कैन टिक, बट देन यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट रेडी है आपके पास तो आप लिख सकते हैं, वहां पूछेगा वो सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, अवेलेबल है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, फिर नहीं अवेलेबल है, आपने खाली अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन नंबर और आपका जो रिसिट रहता है एप्लीकेशन का, दैट आल्सो यू कैन अपलोड। तो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा। ये 10% एक्स्ट्रा सीट्स है, 60 सीट्स है एक ब्रांच का, तो 60 प्लस 10% ऑफ द 60 is 6 सीट, तो 6 एक्स्ट्रा सीट्स फॉर योर ईडब्ल्यूएस कोटा इज देयर फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। तो वो आप प्रॉपरली वहां पे टिक कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा चाहिए या नहीं चाहिए आपको। यस है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसमें ऑप्शन भी है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है आपके पास तो यू हैव टू अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन नंबर वहां पे डाल देना है और फिर एप्लीकेशन नंबर और रिसिप्ट को आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स की तरह। सबमिटेड, that option is there। हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है then you will not go in EWS कोटा। वैसे बाकी कास्ट के लोग आएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपका कास्ट है, एनटी, वीटी, वीजे, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर सब कास्ट भी भरना होगा, जैसे ओपन में भी सब कास्ट आएगा, जैसे ब्राह्मण कैंडिडेट रहेगा तो यू कैन पुट ब्राह्मण। एससी एसटी में भी आपके जो कास्ट है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि धनगर, तो आप ये भर सकते हैं, धनगर कास्ट है आपकी। तो ऐसे काफी कास्ट रहते हैं, तो यू कैन पुट योर कास्ट देयर, सब कास्ट। यहाँ पे भी वो पूछेगा एनटी वगैरह,
तो आपको सर्टिफिकेट पूछेगा। कास्ट जो ओबीसी है, SC, ST, NT, they will ask for caste validity certificate, caste validity certificate। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करो, अवेलेबल करो। नहीं है आपके पास तो आपको ओपन कैटेगरी में डालेंगे। या तो आपने अप्लाई किया है, यू अप्लाइड फॉर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, देन यू कैन पुट द एप्लीकेशन नंबर एंड देन सिलेक्ट द ट्राइब वैलिडिटी। ये दिखा है ना, वैलिडिटी सर्टिफिकेट स्टेटस अवेलेबल है या अप्लाइड, ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। और फिर आपको नॉन क्रीमी लेयर ये ओबीसी और एनटी वगैरह वीजे के वगैरह है, SC ST के लिए नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट्स है, वीजे कैंडिडेट्स है, एनटी कैंडिडेट्स है, उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, मतलब वही इनकम सर्टिफिकेट जो ओपन कैंडिडेट के लिए मैंने बताया था कि योर इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख, तो वो सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल रहेगा तो अवेलेबल लिखिए, नहीं रहेगा अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेबल लिखिए। तो सी दैट यू हैव दैट सर्टिफिकेट। नहीं तो ओबीसी को जो आपको फी का बेनिफिट मिलता है एनटी ओबीसी को, तो वो नहीं मिलेगा, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो। So you will have the reservation benefit, but fee benefit it depend on this only criteria. So your family income should be less than 8 lakh. तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ड्रॉप डाउन में। तो फिल करते समय प्रॉपरली भरिए, 20 प्रॉपर, fill it properly. So this covers your one part. Now इसमें ही जैसे आगे आप जाएंगे सेव एंड प्रोसीड करके, यू विल हैव दिस टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल रिजर्वेशन। इसमें काफी लोग आने वाले हैं पैरेलल रिजर्वेशन में हमारे क्लासेस से। तो पैरेलल रिजर्वेशन क्या होता है, वैसे आगे जाएंगे तो जैसे ये आया आपका ईडब्ल्यूएस कोटा, SC कोटा, ST कोटा, ओबीसी कोटा, ये सोशल कैटेगरी रिजर्वेशन थे, सोशल रिजर्वेशन थे। अभी आपको पैरेलल रिजर्वेशन कुछ दिए गए हैं। इसमें से पहला है हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी हैंडीकैप रहेगा यू कैन फिल इन, बट आपको सर्टिफिकेट लगेगा हॉस्पिटल का, बाय गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल का, कि यू आर हैंडीकैप पर्सन। डिफेंस सर्विस के स्टूडेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स डिफेंस में रहेंगे, तो उनके लिए भी डिफेंस सर्विस के लिए यू हैव द सर्टिफिकेट्स विल बी रिक्वायर्ड। ये 2 कैटेगरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ट्यूशन फी वेवर स्कीम आता है, ये सी जिसको अप्लाई करना है। जैसे ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस किया, वैसे ट्यूशन फी वेवर स्कीम भी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओबीसी, SC ST NT उनको ऑलरेडी कास्ट में बेनिफिट है फी का, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो ये नहीं ले सकते। अगेन दिस ट्यूशन फी वेवर स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये भी और एक्स्ट्रा 5 सीट रहते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस के 6 सीट और TFWS के 5 सीट, मतलब अराउंड 11 सीट एक्स्ट्रा आर गिवन फॉर दिस। तो यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है दैट योर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। आपके पास वो सर्टिफिकेट है इनकम 8 लाख के नीचे मेरा फैमिली इनकम है, योर फादर एंड मदर का इनकम इज बिलो 8 लाख, यू कैन गो फॉर इट TFWS कोटा। तो आप TFWS कोटा भी अप्लाई कर सकते हैं, so you can go for that quota also, so you can have that seat, 5 seats are reserved there also, and that 6 seats for your EWS, but then you have to get the certificate। नहीं होगा तो भी आपके पास अभी है 3-4 दिन, 15th is the last date, you can get the certificate, एटलीस्ट अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म तो आप सबमिट कर सकते हैं। देन ऑर्फन कैटेगरी है, तो ऑर्फन के स्टूडेंट्स है, कोई ऑर्फन है तो यू कैन टेक दैट बेनिफिट। एंड देन कम्स द मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैटेगरी। इसमें से आपने काफी सीएल के बच्चे हैं, वो आर सीएल स्टूडेंट्स विल बी इन माइनॉरिटी कैटेगरी, तो प्लीज टेक इट प्रॉपर्ली, माइनॉरिटी कैटेगरी। अभी माइनॉरिटी कैटेगरी के काफी कॉलेजेस है जो मैंने लास्ट टाइम रिजर्वेशंस के बारे में बताया, जैसे ताकुर और LR तिवारी है नॉर्थ इंडियन, सेंट फ्रांसिस क्रिश्चियन है, साबू सिद्दीक रिजवी मुस्लिम माइनॉरिटी है, देन डीजे सांगवी गुजराती जैन माइनॉरिटी है। सो देयर लॉट ऑफ माइनॉरिटी कॉलेजेस आर देयर, सो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैव टू फिल इट प्रॉपर्ली। इसमें 2 टाइप्स के माइनॉरिटी आते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लैंग्वेज के ऊपर, और रिलीजियस माइनॉरिटी, इट इज बेस्ड ऑन योर रिलीजन, you may be Christian, Sikh, Hindu, so minority, the Hindu doesn't fall in the minority, so Muslims will have that minority colleges are there, so based on your language and based on your religion. Christians, you can click in box in the front of linguistic minority and
religious minority. If the candidate is in minority category, select the language minor type and religious minor type in the minority category. Click to proceed. तो minority आप डाल सकते हैं, TFW भी डाल सकते हैं, पर minority category students, आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आपको सीट लग रही है तो आपको TFW का बेनिफिट नहीं मिलेगा. हाँ, आपको TFWS कैटेगरी से सीट लग रही है कोटा से तो आपको ट्यूशन फी का बेनिफिट मिलेगा. यू विल गेट द बेनिफिट ओनली इफ योर कैंडिडेचर इज सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर कोटा. और समझो आप ठाकुर में जा रहे हैं, ठाकुर में भी TFWS कोटा है, आपने दोनों अप्लाई किया है, पर आपको माइनॉरिटी कोटा में लग गया सीट, then you are not eligible for TFWS. तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको पूरा फी ठाकुर का भरना ही पड़ेगा, जो भी है 1.5 something is the it will be you have to fill it up. But if you are going through this, that is tuition fee waiver, इसमें जा रहे हैं, आपको ये कैटेगरी से नहीं लग रहा है, आपको ये कैटेगरी में सीट लग रहा है, वो आपको फॉर्म फिलिंग करते समय जब आप कैप 1 का कैप 2 का फॉर्म भरेंगे तभी आपको वो कॉलेजेस प्रॉपर सिलेक्ट करना है. TFWS का कोड अलग आता है. So you get a different code for TFWS and minority quota. So depending on what quota you are applying and what seat you are getting, that tuition fee waiver will be there. So it will be depending on what you are applying. So please see that if you want, like minority students है, उसको ठाकुर में नहीं लेना है, उसको TFW में लेना है. So you can apply for TFW quota in say other non-minority college. जैसे अथर्व कॉलेज है बालाड में, it is a non-minority college. So it is non-minority. So minority कैटेगरी का स्टूडेंट वहां पे अप्लाई कर रहा है, उसको नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी में मिलेगा, ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो वहां पे उसको TFWS मिल सकता है. So you can get this TFWS quota in that college. But if you are getting a seat of minority category in Thakur, you are not eligible for the fee benefits of tuition fee. So it depends on your putting. It is just like a permutation and कॉम्बिनेशन. प्रोबेबिलिटी है कैप राउंड में आप कैसे ऑप्शंस दे रहे हैं, 1 2 3. आई हैव टोल्ड यू 300 ऑप्शंस तक आप जा सकते हैं, 300 ऑप्शंस आप भर सकते हैं, और आप कौन सा ऑप्शन कैसे दे रहे हैं दैट विल डिपेंड. सो वो मैं तभी बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग को खाली रजिस्ट्रेशन करना है. ये सब 18 19 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगा आपका कैप राउंड, अराउंड 19 20. दैट शेड्यूल इज देयर, यू कैन लुक आउट फॉर द शेड्यूल. So I am not going to that detail at this moment. So first fill your form properly. पर आपको लेना है तो TFWS कोटा आप टिक करो, पर सर्टिफिकेट लगेगा. प्लीज सी दैट. माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी का भी सर्टिफिकेट लगता है that you are a minority in महाराष्ट्र. वो स्टैम्प पेपर 100 रुपीज मैंने बताया था, वो करके लेना है आपको. So ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ. इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो स्टूडेंट्स का वो TFW नहीं है सर मेरे पास सर्टिफिकेट था, TFW नहीं है, रेक्टिफाई करना काफी टाइम जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अभी सिंस कोविड इज गोइंग ऑन, यू आर नॉट एबल टू गो देयर इन प्रेजेंस, नेचर या प्रेजेंस में नहीं जा रहे ऑफिसर के, तो आपको ऑनलाइन ही आपको रेक्टिफाई करना है, आपको ईमेल करने पड़ेगा. ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डन, सो इट इज डिफिकल्ट. सो प्लीज फिल इट प्रॉपर्ली. चेक करो सब भरे हैं क्या, सब सर्टिफिकेट्स है क्या आपके पास. सो प्लीज fill it properly. Now going to the next slide. After filling this, TFW है, minority है, linguistic है या religious minority है, you can fill it and then you can proceed ahead. So you can proceed. I don't have a slide for this. उसके बाद next slide after that is comes your qualification detail. SCC के मार्क्स आपको भरना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी पुणे. यू टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट बोर्ड. सीट नंबर आपका डालना है, पासिंग ईयर डालना है, सो दैट इज नॉट अ बिग इश्यू एज सच. तो एसएससी के डिटेल्स डालना है. मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ 10 out of 100, एसएससी मार्क्स, साइंस के मार्क्स है, एंड एसएससी साइंस मार्क्स, एसएससी इंग्लिश मार्क्स एंड एग्रीगेट मार्क्स, एंड योर परसेंटेज आउट ऑफ 650 है. प्लीज सी दैट, नॉट आउट ऑफ बेस्ट 5. तो 650 के मार्क्स आपको डालने हैं, आपका परसेंटेज एग्रीगेट क्या है वो डालना है, दैट इज योर 10th मार्क. और फिर इसके बाद यू कैन प्रोसीड हियर. यू विल हैव 12th मार्क. फिल द 12th मार्क. इसके लिए देखो 12th pass examination. After that, candidate has to fill in the details of the 12th or equivalent examination, the name of the school, the name of the board, the year pass, the seat number and name of the candidate should be mentioned in it.
the candidate has passed the 12th board in 2018, 19 and 20, then such candidates are not required to fill marks. Clicking on get HSC data, वहाँ पे एक आएगा बटन आएगा get HSC data, click करेंगे तो if you are passing in this year, last year and previous year, 3 years back, you will directly get your HSC marks there. Will automatically show the score by the computer system. But candidates who have passed the rest of the year will have to mention the mark themselves. मतलब 2018 के पहले आप 12th पास कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है ओल्ड कैंडिडेट है और वो अभी इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहता है तो he can has to put all the details. But आपको खाली आपका can fill the details of 12 equal the name of the school, school board, आपका year पास सीट नंबर डालेंगे तो सब आ जाएगा get HSC data करके. So don't worry for the existing students. It is a very simple step. Only you can check your marks. कुछ गलत रहेगा तो ग्रीवेंस के समय आप ग्रीवेंस में कर सकते हो करेक्शंस. But HSC marks are only for your qualifying, so it doesn't affect your rank as such. So ये हो गया आपका क्वालिफिकेशंस 10th और 12th का. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, स्टेज नंबर 6. अभी हम लोग ने स्टेज नंबर 1 एक मैं रिवाइज कर रहा हूँ. स्टेज नंबर 1 में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया विद एक्नॉलेजमेंट, पासवर्ड मिल गया आपको, आईडी मिल गया. स्टेज नंबर 2 में आपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिया, टाइप ई एंड होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया मुंबई. फिर स्टेज 3 में आपने सोशल रिजर्वेशन सिलेक्ट किया, मतलब ओपन है आपकी कैटेगरी या आप SC ST OBC है, ये हो गया. स्टेज 5 में आपने पैरेलल रिजर्वेशन सिलेक्ट किया, मतलब इफ यू गो बैक जस्ट टू रिकलेक्ट, आप TFWS कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, ये स्टेज 5 में किया. तो वी हैव कंप्लीटेड द स्टेज 5. अभी स्टेज 6 में हम लोग जा रहे हैं. वहां पे आपको मेन पेपर 1 का जो मार्क्स है आपके वो डालने हैं. सो देखो यहाँ पे आपने दिया रोल नंबर है, यू हैव टू फिल द रोल नंबर. पहले तो आपको अपियर किया है JEE मेन 2020, यस और नो, यस. देन आपको रोल नंबर डालना है. देन JEE अपीयरिंग मंथ डालना है, जनवरी या तो अगस्त का टेस्ट लिया वो. फिर आपका मार्क्स डालना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बेस्ट वाला लेना है. पहले वाले में बेस्ट रहेगा तो वो लीजिए, इसमें रहेगा तो ये लीजिए. तो यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट जो आपको दिया है आपके मार्कशीट पे बेस्ट करके जो भी है उस हिसाब से यू कैन सिलेक्ट. सो यू कैन पुट योर रोल नंबर, JEE अपीयरिंग मंथ एंड ईयर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के परसेंटाइल एंड टोटल परसेंटाइल. तो ये JEE का फिलअप हो गया. दैट कंप्लीट्स योर स्टेज 6. अब ये स्टेज 6 कंप्लीट होते ही आपके काफी आपके पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह दे दी है. तो ये आपने यहाँ तक भर लिया है फॉर्म. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज. स्टेज 7, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लोड करना है. इन द बिगिनिंग द कैंडिडेट हैज टू चूज अ फोटोग्राफ, select the photo and choose one of the front file or camera. In this case, when the candidate is applying from mobile, click on camera button. Or if the candidate is applying from computer or laptop, click on file button and select the photo. And also make the selected photo into more or less size. Click on the crop button and upload the photo and save and proceed. तो आपको फोटो अपलोड करना है, कंडीशंस दिए है उसको. यूज अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. तो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं जो आपने CT के इसमें भी किए थे. CT का जब भी आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ पे भी आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे. सो यू नो द प्रोसेस. फोटोग्राफ इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट और PNG फॉर्मेट. साइज ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी greater than 4 KB but less than 100 KB. Dimension of photograph 3.5 width and 4.5 height only. इसमें आपको बिठाना है. So you adjust it, crop करके. Ensure that photograph image is of good quality. Use browse button to set photo image and click preview button to verify your photograph. तो आपको फोटोग्राफ करना है. यहाँ पे सब हुआ है कि आप क्रॉप कर सकते हैं. यू कैन क्रॉप एंड ऑल दिस थिंग यू कैन डू. सो ये देखो ये सब दिया हुआ है. तो यू कैन फोटोग्राफ विथ साइन यू कैन अपलोड. वहाँ पे जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. फोटोग्राफ एंड साइन अपलोड करना है आपको. तो यहाँ पे सब दिया उन्होंने. यू कैन अपलोड दिस. Once you upload the photograph and sign, next step, upload the required documents.
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले वो आपको अपलोड करने हैं. प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम. इज सेइंग फाइल टाइप्स पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, 500 केबी मैक्सिमम इज अलाउड. सो 500 केबी के ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए. ये कुछ नॉर्मल उन्होंने दिए जो बेसिक सबके लिए. कास्ट वाइज रहेंगे या तो आप स्पेशल कुछ है तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने हैं. व्यू करके एडिट भी कर सकते हैं बाद में आप. देखो पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा. लिविंग, कॉलेज लिविंग भी चलता है. बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट शोइंग इज ए प्लेस ऑफ बर्थ इज इन महाराष्ट्र, टाइप ए के लिए. कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट कैंडिडेट के लिए. वैलिडिटी सर्टिफिकेट कास्ट एंड ट्राइब वैलिडिटी. नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एससी कैंडिडेट. इनकम सर्टिफिकेट्स और 8 लाख ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेगा. स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ एसएससी, एचएससी, सीटी. अभी जेई का इन्होंने मांगा नहीं है, but you can upload your JEE score also if it is available. You can upload that also. तो ये बेसिक भी है. एक्स्ट्रा भी कोई आएंगे, माइनॉरिटी वाला आएगा, वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रहेगा. सो दैट लिस्ट विल गो ऑन. So you can go through it, you'll get it. तो जस्ट बेसिक सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मैंने बताने के लिए स्लाइड पे रखे हैं. सो ऑल मेनी अदर इज देयर. डिफेंस रहेगा तो डिफेंस का सर्टिफिकेट रहेगा. इफ गवर्नमेंट फादर मदर काम कर रहा है तो उसका फादर मदर का सर्टिफिकेट परफॉर्मा रहता है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है इफ यू आर दैट टाइप ऑफ कैंडिडेट. बट नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट, 12 की मार्कशीट, एमएससीटी मार्कशीट, जेई मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट को कास्ट वैलिडिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट एंड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट. नेशनलिटी के लिए डोमिसाइल भी चलेगा, यू कैन पुट दैट आल्सो. बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा. फिर उसके लिए आपके कॉलेज लिविंग के ऊपर भी नेशनलिटी लिखा रहता है इंडियन. no issue in that. So there are lots of things you can upload there. So please upload all the documents properly. JPG फाइल बना लो या PDF फॉर्मेट में. मैक्सिमम 500 KB है. तो अपलोड करेंगे आप तो आपका और एक स्टेज खत्म होगा. ये आपका स्टेज 9 हो गया. हम लोग ने स्टेज 7 फोटो किया अपलोड. फिर स्टेज 8 में हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए. और अभी आ रहा है आपका स्टेज 9, पेइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी. तो ये सब होने के बाद अभी आपको फी भरनी है. सो द कैंडिडेट आस्क्स टू पे द एप्लीकेशन फी फॉर द एडमिशन प्रोसेस एज पर द सिलेक्टेड social category and parallel reservation in the application. The candidate will be shown how much the total application fee has to be paid. तो वहां पे आपको आ जाएगा कि आपने जैसे क्लिक किया सोशल कैटेगरी, आपने ओबीसी किया है, ओपन में किया है, ईडब्ल्यूएस कोटा किया है, फिर पैरेलल कैटेगरी में आपने माइनॉरिटी किया है, टीएफडब्ल्यूएस कोटा में डाल दिया आपको. तो डिपेंड विच कोटा यू आर अप्लाइंग, आपके फी आएंगे. If the candidate has appeared for MSCT 2020 examination, the candidates are asked to pay the remaining fees online except the fees paid for that examination. मतलब MSCT की फी पेड किए वो छोड़ के आपको एक्स्ट्रा जो आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं ना, सोशल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एनटी, फिर पैरेलल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई कर रहे हैं, टीएफडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी कोटा, ये कोटा के लिए आपको फी भरनी पड़ेगी, वो नीचे आएगी. तो क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट बटन बिलो टू पे द एडमिशन फी. The candidate should then click on the proceed button to pay the online fee gateway page. Candidates can pay the application fee by choosing one of the medium. सब मीडियम अवेलेबल है. कार्ड से, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, वैलेट, यूपीआई, क्यूआर कोड. तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है MSCT एप्लीकेशन फी पेड 800. ये आपने फॉर्म के समय भरी थी. ओपन के लिए वो भी किस लिए कम थी. ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आएगी इधर. ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेड नील. ऑनलाइन एप्लीकेशन फी टू बी पेड नील. जो भी आएगा वो आपको भरना है. ऐसे आ रहा है नील तो आपको नील रखना है. सेव एंड प्रोसीड, आपको कुछ भरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी MSCT के भरे. हाँ, पर वो एक्स्ट्रा जो कैटेगरी अप्लाई किया है, जिसने कुछ कैटेगरी अप्लाई नहीं किया, ओपन कैंडिडेट है, उसने कुछ नहीं किया, बस ओपन हूँ मैं, बस ईडब्ल्यूएस नहीं ले रहा हूँ, टीएफडब्ल्यूएस नहीं ले रहा हूँ, फिर माइनॉरिटी कोटा नहीं ले रहा, तो उसको नील ही आएगी फी. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फी क्या है. यू विल गेट हियर, स्टेटस विल बी देयर. तो आपका फी भरनी है एक्स्ट्रा या नहीं भरनी है, 800 प्लस कुछ भरनी है क्या नहीं.
तो इट विल बी देयर. सो डोंट बी अफ्रेड दैट मेरे को क्या फी भरनी है. So it will be proceeded there. So once you pay the fees, you can save and proceed. So online payment करो, click करके pay application fee. So you pay it and you can go ahead. So once you pay the fee, आपका और एक स्टेज खत्म हो गया. That is the stage 9. Now coming to your stage 10. ये सबसे लास्ट स्टेज है. अभी वहां पे मैं आ रहा हूँ. फी पेमेंट हो गया आपका. जैसे आप फी पे करेंगे, a copy of the application is shown to the candidate as per the information filled by the candidate and upload documents icon. Stage 10. जैसे फी फिल करेंगे, फी आपका रजिस्टर हो जाएगा, ऐसे आपका एक पिक्चर आएगा आपके पास, आपका फोटो के साथ जो आपने अपलोड किया है, आपका आईडी नंबर, फिर आपका नेम आएगा, सब डिटेल, डेट ऑफ बर्थ आएगा, कैंडिडेट टाइप आएगा, होम यूनिवर्सिटी, कैटेगरी आएगा, मतलब ओपन है, SC ST, फिर कैटेगरी ऑफ एडमिशन आएगा हमारा, एनटी में ले रहे हैं क्या, फिर अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, यस या नो, यस किया तो यस आएगा, नो किया नो आएगा. फिर आपको आएगा माइनॉरिटी स्टेटस, एप्लीकेबल है या नहीं है, मतलब माइनॉरिटी में आपने अप्लाई किया तो आएगा यस करके, ऐसा एक पिक्चर आएगा. वंस आप फी भर रहे हैं तो फी भर के फी प्रोसेस हो गया, वो ओके हो गया, यू विल गेट दिस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन. A copy of application is shown on the to the candidate as per the information filled by the candidate and upload a document certificate. Candidate should check the information filled in, and if changes is to be made to the application, he can click on the relevant stage. अभी 10 स्टेज हम लोग ने 9 स्टेज किए, तो आपको लग रहा है ये देखने के बाद कि मैं EWS भूल गया यस करने के लिए, या तो फिर TFWS कोटा भूल गया, माइनॉरिटी कोटा भूल गया, तो आप वापिस जा सकते हैं स्टेज में. वहां पे बाजू में लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन में, तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड में यू विल गेट द डिटेल्स. फ्रॉम देयर यू कैन गो बैक टू द रिलेवेंट स्टेजेस, स्टेज 1 2 3. जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपकी मिस्टेक हो गई है, तो वो आप मिस्टेक रेक्टिफाई कीजिए. यू कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक बाय पुटिंग ऑल दिस थिंग्स, रीचेंजिंग योर डेटा filled in. Candidate should make appropriate changes and click on save and proceed. Again आप save and proceed कर सकते हैं. कैंडिडेट चेक कर लो बिफोर ई वेरिफिकेशन. देखो ये सबसे सी पार्ट इंपॉर्टेंट है. एंड द कैंडिडेट शुड चेक द चेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट ऑन द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड इफ अप्रोप्रिएट क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई वेरिफिकेशन बटन बिलो. नीचे आएगा, सब होने के बाद इसके नीचे आएगा फोटो के, ई वेरिफिकेशन करने के लिए मैं भेज रहा हूँ मेरा फॉर्म. ये वेरिफिकेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो बराबर है क्या नहीं. पहले कैसे होता था, वो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल लेके जाने पड़ते थे, अपलोडेड डॉक्यूमेंट वहां पे जाके आपको बताने पड़ते थे कॉलेज में, फैसिलिटेशन सेंटर्स में, अप्रोप्रिएट सेंटर जो दिए रहते उधर. पर अभी you can pandemic situation, they are not asking you to go to the center, but they will e-verify your documents from there only. और आपको मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है या नहीं है, चेक करना है, आपको कुछ चेंज करना है, वो सब आएगा, वो मैं आगे बताता हूँ आपको. तो कैंडिडेट्स को ई-वेरिफिकेशन बटन जो बिलो है वो प्रेस करना है. देन द कैंडिडेट विल देन बी आस्क्ड फॉर लॉगिन पासवर्ड. जैसे आप ई-वेरिफिकेशन बटन प्रेस करेंगे, सब डिटेल भरने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड पूछेंगे. तो लॉगिन पासवर्ड क्लिक करके आप वेरीफाई पासवर्ड बटन करना है. तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको. ये देखो एप्लीकेशन लॉकिंग, मतलब जैसे आपने चेक किया, रीचेक किया, कुछ चेंजेस किया आपने प्रॉपरली, तो नाउ यू आर सेंडिंग योर एप्लीकेशन फॉर ई वेरिफिकेशन. टू सेंड एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी. ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन वो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए. फर्स्ट एंटर द लॉगिन अकाउंट पासवर्ड एंड क्लिक द वेरीफाई पासवर्ड बटन. तो ये देखो ऐसे आपके पास ये आएगा, डैशबोर्ड पे आएगा, लॉगिन पासवर्ड डाल दो, वेरीफाई पासवर्ड करो, तो आपका ई वेरिफिकेशन या यू कैन से ई स्क्रूटिनी के लिए आपका फॉर्म गया है. अभी ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. जैसे आपने वेरीफाई पासवर्ड डाल दिया तो ओटीपी विल बी सेंड थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम टू द मोबाइल नंबर मेंशन बाय द कैंडिडेट. मतलब आपने जो
मोबाइल नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन करते समय, OTP will send to that. In the boxes on the screen, mention the OTP received on the mobile and verify OTP करो. पासवर्ड वेरीफाई किया, अभी वेरीफाई OTP करो. जो भी OTP आ रहा है यहाँ पे आपको OTP भरना है एंड वेरीफाई करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म. नहीं आ रहा है तो रिट्राई और ट्राई करो, वो वापस आ जाएगा एक बार OTP. सो वेरीफाई OTP करो. वंस यू वेरीफाई द OTP, आपका फॉर्म सबमिट हो गया. यू हैव सबमिटेड द फॉर्म फॉर योर इंजीनियरिंग एडमिशन कैप राउंड के लिए. योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड. तो जैसे आप सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, आपको वेरीफाई कर रहे हैं ई स्क्रूटिनी के लिए, मतलब आप ई स्क्रूटिनी के लिए आपका फॉर्म गया. अब उसमें कुछ चेंजेस है वो बाद में आएंगे. तो पहले ये आपको ऐसे व्यू आएगा. ये आपका कॉपी जो गया है वो ई स्क्रूटिनी के लिए गया है. कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट टाइप, होम यूनिवर्सिटी, कैटेगरी फॉर एडमिशन, अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफेंस का टाइप है, ऑर्फन, अप्लाइड फॉर TFW सीट, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, ये सब आ जाएगा. यस नो जो भी आपने किया है पूरा विंडो आपके ऊपर दिखेगा. आपको पूरा आपका एप्लीकेशन आईडी वर्जन नंबर 2 है. वर्जन नंबर 1 पहले आया था ना एक फोटो, तो दैट इज ये वर्जन नंबर 1. अभी जैसे आपने सब वेरीफाई के लिए भेज दिया तो ये वर्जन नंबर 2 आएगा. एट दिस स्टेज इट इज अंडरस्टूड दैट योर फॉर्म हैज बीन सेंट फॉर वेरिफिकेशन. ई वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपका फॉर्म गया है. अभी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे. वेरीफाई होने के बाद आप रजिस्टर कंप्लीट हो गए, मतलब आपका फॉर्म प्रॉपर फिल हो गया. उसके लिए भी एक दो स्टेप्स है, दैट आल्सो आई विल शो यू. वंस दिस फॉर्म हैज बीन सेंट प्रॉपरली ई वेरिफिकेशन के लिए, वहां से डैशबोर्ड पे मैसेज आएगा आपको. देखो, after the candidate submits the application for e-scrutiny, the scrutiny status is displayed on the dashboard. मतलब आज आपने भेज दिया तो डैशबोर्ड पे आप वापस रजिस्टर स्टूडेंट करके लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आपका क्या है वो समझेगा. तो देखो, लॉगिन डिटेल्स, एप्लीकेशन आईडी, यूजर नेम, आईपी एड्रेस सब आएगा आपका और एप्लीकेशन का स्टेटस आएगा. देखो नीचे, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू द वैलिडेशन सेंटर फॉर ई वेरिफिकेशन. इट विल बी वेरीफाइड सून. ऐसा मैसेज आएगा. मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मेरा फॉर्म वेरिफिकेशन को पहुंच गया है, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया मेरे फॉर्म का जो भी था. हाँ, अभी कुछ सर्टिफिकेट गलत है या है तो वो आपको बाद में समझेगा स्क्रूटिनी होने के बाद. तो आफ्टर कैंडिडेट सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, ई स्क्रूटिनी स्टेटस इज डिस्प्ले. जब भी ये स्टेटस आएगा तभी आप समझ सकते हैं कि आपका फॉर्म ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के लिए. सो योर प्रोसेस इज कंप्लीट. अभी आगे का थोड़ा बहुत प्रोसेस है सर्टिफिकेट रेक्टिफिकेशन का, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रूटिनी ऑफिसर. वो जैसे वो स्क्रूटिनी करेगा वैसे आपको समझेगा. उसके भी एक दो स्टेप्स है, वो भी मैं 5-10 मिनट में बता देता हूँ. सो यहाँ तक हम लोग आगे. दिस इज द प्लेस where it is understood that your registration is thoroughly completed when you get this message on your dashboard. अभी ऐसे लग रहा है आपको कि आपने स्क्रूटिनाइज के लिए भेज दिया, लॉक किया एप्लीकेशन, बट कभी ऐसे हो सकता है बाद में दूसरे दिन आपको समझ में आ गया यू हैव मेड अ सिली मिस्टेक, आपको चेंजेस करना है. तो यू कैन अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म. लेफ्ट साइड में एक लिंक दिया है, वहां पे आप पासवर्ड अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करके एंटर योर पासवर्ड, आप अनलॉक करके करेक्शन कर सकते हैं. बट ये करेक्शन कभी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्रूटिनी जो ऑफिसर है आपका, उसने आपका स्क्रूटिनी के लिए लिया नहीं है फॉर्म अभी तक, तो आप कर सकते हैं. बट इफ योर स्क्रूटिनी ऑफिसर हैज टेकन फॉर स्क्रूटिनी, यू कैन नॉट चेंज. उसे लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे. However, the application of candidate will be locked after scrutiny officer takes the application for e-screening, and in such cases, no changes can be made by the candidate. Make the changes in between. So, scrutiny होने के बाद आप चेंजेस कर सकते हैं, वापस स्क्रूटिनी करनी पड़ेगा. सो नो प्रॉब्लम, मिस्टेक हो गया तो भी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक एज फार एज पॉसिबल. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है आपका
just 1 minute. After that scrutiny status आएगा. Once the scrutiny officer, मतलब आपका पहला वो स्टेटस आ गया डैशबोर्ड पे, योर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड एंड सेंड फॉर स्क्रूटिनी, तो वो अभी गया आपका स्क्रूटिनी करने के लिए. और जैसे ही स्क्रूटिनी ऑफिसर एप्लीकेशन आपका ले रहा है स्क्रूटिनी करने के लिए, आपको मैसेज आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज पिक फॉर ई वेरिफिकेशन एंड लॉक, इट विल बी री वेरीफाइड सून. मतलब वो अभी चेक कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद उसको लग रहा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए हैं, आपने PFWS के डॉक्यूमेंट डाले नहीं है तो, या डाले हैं, या कोई सर्टिफिकेट गलत डाला है, तो आपको वो इधर नीचे बता देगा. द स्क्रूटिनी ऑफिसर इज स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, द स्टेटस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटिनी विल बी शोन ऑन द डैशबोर्ड. मतलब आपका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सर्टिफिकेट्स ओके है, तो आपको नीचे मैसेज आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म, प्लीज चेक द एक्नॉलेजमेंट. मतलब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई है. आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी इधर लिखा है देखो बाजू में. तो आप जैसे ही वेरीफाई पूरा हो गया, कंफर्म हो गया, आप एप्लीकेशन फॉर्म का चाहिए तो एक डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं. अभी यहाँ पे जब आप आएंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन कैप के लिए हो गया. नाउ यू आर एलिजिबल फॉर कैप. आपको SML नंबर, मतलब जो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर मिलेगा वो मिलेगा. ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटिनी ऑफिसर ने आपका फॉर्म चेक किया, आपके डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर है एंड योर स्क्रूटिनी इज कंप्लीट, यू आर कंफर्म. सो आप हो गए. अभी आगे का स्टेप आएगा कैप राउंड्स में, कैसे कैप राउंड के फॉर्म भरना है आपका मेरिट नंबर मिलने के बाद. व्हेन यू गेट द स्टेट मेरिट लिस्ट दैट टाइम देयर. अभी एक और केस हो सकता है, समझो आपके स्क्रूटिनी के समय आपका कुछ गलत हो रहा है, आपका फॉर्म से कदा में भी, और वेरिफिकेशन के समय स्क्रूटिनी ऑफिसर को लग रहा है कि आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, तो नीचे वो लिखेगा देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, डिस्क्रिपेंसी जेंडर है, आपने गलती से मेल की जगह पे फीमेल डाल दिया, फीमेल को मेल करा, तो वो लिखेगा जेंडर नॉट मैचिंग ऑफिसर, तो वो क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. जैसे वो लिखा एरर रहेगा रिजर्वेशन में, देखो होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिकेट नॉट, तो आपका कोई होम यूनिवर्सिटी आपने गलत डाला, आप 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड बॉम्बे से पास हो रहे और होम यूनिवर्सिटी आप बोलेंगे मैं पुणे यूनिवर्सिटी डाल रहा हूँ, ऐसे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, तो स्क्रूटिनी ऑफिसर लिखेगा कि आपके फॉर्म में स्क्रूटिनी बराबर नहीं है, आप चेंज करिए. तो एडिट करके आप क्लिक टू एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, और फिर आपको रीवेरीफाई करेगा वो और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा. तो ये आपका प्रोसेस रहेगा एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जेंडर नॉट मैच जो मैंने तभी बताया, इसे कुछ आएगा तो आप वो कर सकते हैं करेक्शन. देखो ऐसे लिखेगा एप्लीकेशन रिवर्टेड बैक, यू काइंडली करेक्ट द डिस्क्रिपेंसी बाय मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको. Okay, so this is what we have gone through the process. Now sir will take questions from you, just 2-3 minutes sir will take. You can put the questions, then we'll start. Sir can take the questions, so if you have any questions in between आपको कोई हेल्प लगेगी तो हम लोग, मैं और सर हेल्प करेंगे आपको, but then आपको कुछ questions है, you can ask. Just 2-3 minutes break will take, and then we'll start with the question and answer session if anybody has some doubts. सर अभी एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने जिस टाइम पे बोर्ड में एग्जाम दिया था उसका नाम गलत हो गया, ठीक है जोशी सर? सर सुन पा रहे मेरी बात आप? हेलो. हाँ सर, ओके. तो बच्चे का नाम गलत हो गया. हाँ बोलिए. So I would see if we can unmute him. Just give me Ayush. Okay. Ayush, you can unmute yourself and ask your question. सर एक्चुअली मेरा जो नेम जो है ना
पापा का नाम जो मुझे पूछा था पहले, कैंडिडेट नेम्स, तो वहाँ पे मैंने पूरा लिखा था पापा का नाम, मुकेश पुरमल जैन करके। तो अभी एज पर सीईटी में जब भी रजिस्टर कर रहा हूँ तो मेरा नाम जैन आयुष मुकेश आना चाहिए, पर मेरे पापा का जो है वो पूरा नाम आ रहा है जैन आयुष मुकेश बुरमल जैन ऐसे। तो वो डिस्क्रिपेंसी बता रहा है, तो मैं फॉर्म भरूं या नहीं, या फिर मैंने मेल भी किया है हाँ, तो वो एफिडेविट करने पड़ता है. यू टू गेट द एफिडेविट डन. वंस यू मेक दैट एफिडेविट ना, वो एफिडेविट बन. You have to make a affidavit. Once the affidavit is done, you can go through it. वो डिस्क्रिपेंसी है तो आएगा ही वैसे, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की और सीईटी का किस पे डिफरेंट है, कौन से मार्कशीट पे? हाँ सर, वो डिफरेंट है। मेरे बोर्ड शीट के मार्कशीट पे आयुष मुकेश जैन है, पापा का नाम सिर्फ मुकेश है। तो एज पर सीईटी जो बता रहे हैं वो पापा का नाम पूरा मैंने डाला है, जबकि मुकेश ही आना चाहिए वहाँ पे। हाँ, तो वो डिस्क्रिपेंसी आपको करेक्ट करने के लिए लिखना ही पड़ेगा. आपने लिखा है ना ईमेल उनको? हेलो? ईमेल मैंने लिखा है, कल मैंने एक बजे के आसपास मैंने उनको मेल लिखा था, पर अब तक रिप्लाई नहीं आया उनका। आएगा आएगा, 1-2 दिन में आएगा. विल सी. इफ इट इज नॉट कम, विल सी व्हाट टू डू. पर वो लेगा ही नहीं ना कि ऑनलाइन है. पहले कैसे होता था, तो वहां मैं पे हम सेंटर पे जाके करेक्ट कर सकते थे ना एफिडेविट देके. वो जो फेलिसिटेशन सेंटर्स होते राइट। थे, तो वी कुड हैव गॉन देयर एंड गिवन टू देम. तो वहां पे वो लेते थे एफिडेविट्स वगैरह. सो नाउ दे विल मेक सम, दिस विल लुक आउट फॉर दैट इफ सम थिंग इज देयर इन देयर ब्रोशर फॉर करेक्शन. डीटी हेल्पलाइन को भी आप तो फोर्स कर सर, सकते. शुड आई स्टार्ट फिलिंग फॉर्म राइट नाउ? यू कैन फिल इट एंड कीप इट ना, सबमिट मत करो ना. वो लेगा ही ना वेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी फॉर बताएगा. वेरिफिकेशन आई शुड नॉट सबमिट? अब अभी यू हैव टिल 15 ना. 15th is the last date या for submission, so you have 5-6 days. They will revert back. Till that you can fill it whatever and keep it. क्योंकि वो जब स्क्रूटिनी में जाएगा तो ओके, डिस्क्रिपेंसी आएगा वहां पे. मतलब वो वेरीफाई करेगा ना राइट। सर्टिफिकेट, ऐसा ही तो करते हैं वो आएगा. जी, इसमें ऐसा ही करते हैं आयुष. वेट फॉर द मेल फ्रॉम सीईटी डिपार्टमेंट फॉर 2 days. ओके, तो हम लोग 12 तारीख को फिर फॉर्म भरने की बात ओके करेंगे. ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी एक स्टूडेंट पूछ रहा है हाँ. कि द एग्जांपल शोन पीपीटी, गर्ल फ्रॉम एनटी कास्ट हैज अप्लाइड फॉर टीएफडब्ल्यूएस. नहीं ओके, नहीं, वो तो वो उन्होंने ऐसे ही डाला है. एंटी कास्ट उनको उनको ऑलरेडी कास्ट में टीएफडब्ल्यूएस कोटा ट्यूशन फी वेवर स्कीम है. वो ओके, पैरेलल है, वो ओपन के लिए जाएगा क्योंकि उनको ऑलरेडी वो उसमें मिलता है फी का. ठीक है सर. एंटी कोटा में ही मिलता है. एक बच्चा कह रहा है सर, कैन यू एक्सप्लेन द फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन. सो मुझे लगता है कि फ्रीज फ्लाइड और स्लाइड ऑप्शन के बारे में अभी बात करनी चाहिए क्या हमें सर? नहीं नहीं सर, अभी इनको पहले रजिस्ट्रेशन करने दीजिए, फिर हम लोग उसको उन लोगों को गाइड करेंगे ना. हम लोग ने वैसे तो अभी वो कंफ्यूज हो जाएंगे. कभी वो 2 ही कैप है, एक ही बेटरमेंट ऑप्शन है उनको. ठीक है. वन टाइम ओनली आप जो कैप. क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है. एडवांस लेवल इन द सेंस कि आप ये वाली ऑप्शन जो है वो 25 दिसंबर के बाद ही आएगी. हाँ. ठीक है. और जब कैप कैप 1 स्टार्ट होएगा ना. हाँ, जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाएगी ना, पहली वाली जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो 25 दिसंबर के बाद आएगी. वो शेड्यूल दिया है, देखो ऊपर क्लिक किया है ना. आप क्लिक में आप जाके वो कर सकते फिर हैं. हम लोग अलग से एक सेमिनार करेंगे कि हाँ, वो ऑप्शन करेंगे हम लोग. क्या है. वो एक थर्ड सेमिनार और होएगा दोबारा. उसके बाद एक बच्चा पूछता है सर, इन द एग्जांपल पीपीटी शॉट दैट द गर्ल. ओके, ये हो गया. हाउ डज जेई स्कोर अफेक्ट द रैंकिंग्स? JEE score will not affect the ranking. Ranking are based on Maharashtra score only, but according to your SML number, they will be allotting you JEE 6. Like for example, if your number is say 7,000 in the state merit list, तो जब भी आप 7,000 पे computer will go, he will check your choices what you are given. For example, say you have put Thakur College electronics as my first choice, Thakur College IT as second choice. So ठाकुर कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स में वो देखेगा कि वेदर एमएससीटी का सीट है नहीं है. इफ विल नॉट देयर, यू आर अप्लाइंग फ्रॉम जेई कोटा आल्सो, विल चेक फॉर योर जेई सीट वेदर जेई का कोटा उधर खाली है क्या नहीं. मतलब वो दोनों चेक करेगा. पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा
कैप राउंड में जब आप फिल करेंगे फॉर्म, तो दैट टाइम सॉफ्टवेयर विल चेक फॉर बोथ ऑप्शन, वेदर इन Thakur so and so branch, whether I am getting a seat through MSCT, whether I am getting a seat through JEE quota, whether I am getting a seat through minority quota. पर मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर ऑन योर स्टेट मेरिट लिस्ट। मतलब ऐसे नहीं होगा कि जेईई मेन से बहुत अच्छे मार्क्स है आपको तो आपका मेरिट लिस्ट ऊपर नहीं जाएगा, मेरिट नंबर आपके एमएससीटी के परसेंटाइल बहुत कम है और जेईई के परसेंटाइल बहुत ऊपर है, तो आपको स्टेट एसएमएल विल बी गिवन ओनली ऑन योर परसेंटाइल स्कोर ऑफ Maharashtra city, not on JEE. But once they check for your MSCT quota, at the same time they will check for your JEE quota also, whether a seat is there. That 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें जगह है क्या नहीं आपको देखेंगे वो पर्टिकुलर कॉलेज में और पर्टिकुलर ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है सर। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव स्कोर्ड 78 परसेंटाइल इन सीईटी, विच कॉलेज डू यू रिकमेंड फॉर मी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एसएमएल नहीं आ जाता है तब तक ये वाली बात नहीं पूछनी चाहिए। एसएमएल आने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर को क्या मिल सकता है। 78 परसेंटाइल मतलब जो ना, आप अभी मत ये सोचिए कि मेरा इतना मार्क्स आया है इतना नहीं आया है, ठीक है। फिर भी वैसे अगर सोचें तो सर क्या इस बच्चे को सीईटी में 78 परसेंटाइल पे कहीं उम्मीद है क्या कंप्यूटर साइंस या आईटी का? मिलेगा तो आईटी मिलेगा, कंप्यूटर साइंस। हाँ, साइंस बॉम्बे में मतलब नियर टू, जैसे आउटसाइड सबब, बॉम्बे के सबब में मिल सकता है। ओके, you can apply for Viva और से like आप ये जो बच्चा जेपी शाह क्वेश्चन वगैरह पूछ जो रहा है। है ना, इसका नाम क्लियर नहीं है। हाँ। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा इस मामले में। ये भी जो भी बच्चा है जिसका क्वेश्चन है 78 परसेंटाइल वाला, आप मेरे नंबर पे पर्सनली कॉल कर लीजिए, फिर मैं बात बताता हूँ। Is it compulsory to get caste certificate of minority on stamp paper or any other caste certificate of minority is fine? Is it एनी compulsory? अदर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है। इट स्टेट्स दैट यू आर अ माइनॉरिटी इन महाराष्ट्र। ऐसे हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में माइनॉरिटी है पर कर्नाटक में माइनॉरिटी नहीं हो सकते। Okay. सो माइनॉरिटी आप है जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, जैसे आपका ठाकुर है, नॉर्थ इंडियन माइनॉरिटी, गुजराती हैविंग अ माइनॉरिटी नॉर्थ इंडियन माइनॉरिटी। हाँ, गुजराती माइनॉरिटी भी है। कि कर्नाटका में भी गुजरातियों को माइनॉरिटी बोला जाता हो। हाँ, वहां पे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब हर एक स्टेट ने सर दिया है माइनॉरिटी स्टेटस हर एक तो उसको, कास्ट तो सर्टिफिकेट डिपेंड्स एंड अपॉन माइनॉरिटी व्हाट। आर टू डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। उसका कास्ट सर्टिफिकेट से वैल्यू नहीं आता है ना। कास्ट सर्टिफिकेट लेना है तो ओपन में जाके कास्ट में डाल सकता है, पर इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कास्ट इज गिवन सेम रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। लाइक अभी वो एग्जांपल में मैंने धनगर डाला था ना, तो धनगर यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब में आते हैं और हाँ, यूपी तो में वो एसटी में आते हैं। ओबीसी के मामले में कुछ कास्ट ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग, दिल्ली में या राजस्थान में वो ओबीसी हाँ, कहलाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो लोग ओबीसी नहीं कहलाते, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी रूल चेंज होता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा वो कास्ट जी। भी। उसके बाद एक बच्चा पूछता है, सर एनी प्रॉब्लम विल नॉट कम इन रजिस्ट्रेशन, what are the documents required for candidate type C? What are the documents required for candidate type C? टाइप सी के लिए कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, परफॉर्मा लगेगा। आप उस ही हैज टू गो टू द ब्रोशर, तो ब्रोशर रिलीज किया है, उस पे परफॉर्मा दिया हुआ है। ओके, ब्रोशर है ना अभी का 2021 का, ये जी मैंने ब्रोशर ग्रुप आपने। में ब्रोशर भेजा हुआ है। हाँ, ठीक भेजा है, है ना उस आपने, ब्रोशर तो में आप परफॉर्मा है। गवर्नमेंट कैंडिडेट करके सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा उसके। लास्ट लास्ट में परफॉर्मा दिया है, लास्ट लास्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तो परफॉर्मा भर के साइन लेके उसका ऑफिस जिस जिस ऑफिस में रहेंगे मम्मी डैडी, तो वो भर के आपको अपलोड करना है वहाँ पे। जी। उसके बाद जैन माइनॉरिटी किस किस कॉलेजेस में है सर? हाँ, जैन माइनॉरिटी स्पेशली नहीं है जैन, ठीक है, गुजराती काम करके है करते हैं वो। सर, हाँ, माइनॉरिटीज के कॉलेज की एक लिस्ट बना के हम लोग मतलब जो ना अलग से ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, वो करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, एक चार आप पांच लोग दिन के बाद हम लोग वो रजिस्ट्रेशन कर करेंगे। लीजिए, फिर माइनॉरिटी कॉलेजेस की लिस्ट बना के ना, जिस जिस किसी की हाँ, माइनॉरिटी वो कौन सा माइनॉरिटी किसके लिए है, वो सब हम लोग करके देंगे उनको, वो ग्रुप में देंगे। फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वो करेंगे हम लोग। हाँ, ओके। उसके बाद
देखिए स्पेसिफिक कॉलेजेस के बारे में अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आई डोंट थिंक, ऐसे तो फिर डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो भी करके स्टूडेंट है अथर्वा सेंट फ्रांसिस के बारे में पूछ रहा है, मैंने आप बोला आप मेरे कॉल नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं वेबिनार में इतनी सारी चीजें एक ही चीज की डिस्कशन नहीं कर सकते। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है, सर्वेश सकपाल, आई हैव अ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग जैन माइनॉरिटी बट इट इज नॉट ऑन स्टैम्प पेपर, सो आई शुड गेट इट ऑन स्टैम्प। Get it on 100 rupees stamp paper. ओके, इट शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर। उसके बाद इफ आई सेलेक्ट TFWS ऑन अ पर्टिकुलर कॉलेज बट इफ आई नॉट मेक इट ऑन मेरिट, then am I eligible for admission through open quota? Whether he's a minority student or what student? मुझे लग रहा है स्टूडेंट माइनॉरिटी है, मतलब हिंदी माइनॉरिटी है। हिंदी माइनॉरिटी है तो इसमें ऐसे है ना सर, हिंदी माइनॉरिटी है तो फॉर एग्जांपल वो ठाकुर को दोनों ऑप्शन फिल कर सकता है, तीनों ऑप्शन फिल कर सकता है। मतलब ओके, समझो ठाकुर को उसको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो यू कैन फिल ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक्स माइनॉरिटी, ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक्स TFWS, ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन। अभी उसको ओपन में लग रहा है, मतलब वो माइनॉरिटी कोटा से नहीं लग रहा है, पहला वो माइनॉरिटी चेक करेगा कॉम्पिटिशन, तो माइनॉरिटी से नहीं लग रहा है तो वो ओपन में जाएगा, ओपन में नहीं लग रहा है या TFW में लग रहा है एक्स्ट्रा सीट में तो उधर जाएगा। पर ठीक है। फी का क्या होगा, ओपन या माइनॉरिटी में वो लग रहा है उसको तो ही हैज टू फी ऑल फी। सर नो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग तो 25 तारीख के बाद ही शुरू हो हाँ सकता है, हाँ ऑप्शन तभी फिलिंग तो हो ही नहीं सकता ना अभी। हाँ अभी नहीं हो सकता, वो अभी तभी तो है। केवल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब होता है, आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं दैट आई इंटेंड टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र विद इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन आप कौन से कॉलेज में मेरी इंटेंशन है या कॉलेजेस की लिस्ट अभी खुलेगी ही नहीं, अभी वो 25 तारीख के बाद खुलेगी। डिफरेंस बिटवीन पनवेल MCL एंड नवी मुंबई पनवेल रायगढ़ CT, आई लिव इन न्यू पनवेल। क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन पनवेल MCI एंड नवी मुंबई पनवेल रायगढ़ CT। आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन, न्यू मुंबई उसको क्या पूछना, क्या व्हाट इज आस्किंग एक्चुअली? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन काइंडली। सुशांत, आप अपना क्वेश्चन दोबारा से रिफाइन कीजिए। हाउ टू गेट द इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFWS कैटेगरी? इनकम सर्टिफिकेट मैंने बताया ना, तहसीलदार ऑफिस जो आपका है एरिया वाइज, जहाँ पे आपका आपका तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऑफिस जो भी होगा वहां पे जाना पड़ेगा आपको। तहसीलदार ऑफिस में जाके, जैसे बोरोली में बोरोली तहसीलदार ऑफिस है, अंधेरी साइड वाले स्टूडेंट्स को अंधेरी तहसीलदार है वो आप अपने भवंस के एरिया बाजू का में। तहसीलदार ऑफिस ढूंढिए कहाँ पे होगा। ओके, जहाँ उसके पे भी जिस है तो तहसीलदार ऑफिस, तालुका का तहसीलदार ऑफिस में ये बनेगा। जी एक इसके मैंने ऑप्शंस लास्ट लेक्चर बताए थे। जी एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर मैंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, अब कब तक वेट करना है? आप फॉर्म भरने के बाद देखिए 20 तारीख के बाद ही कुछ होएगा, आपको देखना चाहिए क्लिक हियर फॉर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ऊपर, क्लिक हियर फॉर CET एग्जाम पोर्टल, स्केड्यूल होगा यहाँ पे एक। सर स्केड्यूल मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, वहां पे आपको पता लग जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद एक स्वप्निल साउंड करके पूछ रहा है, सर व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू EWS कोटा और वही इनकम सर्टिफिकेट, TWS कोटा वाला जो है ना वो TFWS को भी अप्लाई कर सकता है। यू कैन अप्लाई फॉर ओपन कैटेगरी है एंड TWS कोटा भी अप्लाई करेगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर TFWS, बोथ ही कैन अप्लाई। जहाँ से भी मेरिट में उसके ऊपर आएगा ही विल गेट दैट दिस फी कंसेशन। सो सेम सर्टिफिकेट इज वैलिड, वो खाली लिख के लेने पड़ेगा, वो EWS का है, वो तहसीलदार बना के देगा, नो प्रॉब्लम, उसने बनाया होगा तो। ओके, ठीक है सर। तो अभी तो मेरे ख्याल से बस यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप अभी तो मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक मिनट देख लेते हैं और कोई बच्चे का क्वेश्चन आया तो। Sir, I live in New Panvel, and in the village section there is showing two options: Panvel MCI and Panvel CL. पर इस बारे में तो मेरे को वो बोल रहा है कि I live in New Panvel, हाँ and तो in the village section there is showing two options: Panvel MCL and Panvel CL. कौन से सेक्शन में बता रहा है वो? विलेज सेक्शन में। तो अभी वो पनवेल का उसका विलेज कौन सा, वो उधर पूछ लीजिए ना तहसीलदार। क्या डिफरेंस है?
डिस्ट्रिक्ट विल बी रायगढ़। नहीं, इस बारे में नहीं मालूम है। पनवेल का डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ होगा, पर विलेज अभी वो कौन सा है उसको समझने है। आई कैन नॉट से फ्रॉम योर पनवेल का विलेज कौन सा है उसका। जी जी। तो Sir, पनवेल does का Thakur College has Hindi minority or Hindi Bhojpuri quota or both? It is Hindi minority only. हिंदी माइनॉरिटी, नॉर्थ इंडियन Hindi माइनॉरिटी। minority. Okay, if your situation fits to Hindi minority, ठीक है, मैंने आपकी डिटेल ये क्वेश्चन की पढ़ ली है, आप बिंदास वहाँ पे ठाकुर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी माइनॉरिटी आएगा। If any problem, call me. Okay, sir, there is no more question. So for now, we give it a rest. आप लोगों को एक सजेशन है मेरा, आप लोग जो सपोर्ट ग्रुप है ना, केमिस्ट्री सपोर्ट या मैथमेटिक्स सपोर्ट ग्रुप, उसमें बने रहिए। एक थर्ड सेमिनार हम लोग 22 के आसपास रखेंगे, जिसमें डिपेंडिंग ऑन के मतलब जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी ना, तो मेरिट लिस्ट का या सर एक बार स्केड्यूल खोल सकते हैं क्या, आपके पास है क्या? स्लाइड बंद करने पड़ेगा 1 मिनट में। हाँ, एक बार स्केड्यूल भी एक बार समझा देते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, बच्चों की चिंता खत्म हो जाएगी फिर। हाँ सर, मैंने खोला है, देखिए बोला क्या? देखिए, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 दिसंबर के फॉर्म भरने के बाद 18 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस्ड। यू विल गेट योर प्रोविजनल स्टेट रैंक। 18 दिसंबर को आपको अपनी प्रोविजनल रैंक मिल जाएगी स्टेट की। उसके बाद 19th एंड 20th ऑफ दिसंबर को कैंडिडेट कैन रेज ग्रीवेंसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप 19 और 20th को ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट के थ्रू ही रेज की जाएगी वो ग्रीवेंस। उसके बाद आपकी ग्रीवेंसेस का निपटारा होगा। 22 तारीख को 22 ऑफ दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस्ड। यू विल गेट योर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी 18 दिसंबर को प्रोविजनल रैंक लिस्ट आएगी। उसके बाद 19-20 को आप ग्रीवेंसेस दे सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो। उसके बाद 22 तारीख को 22 को ही आपको फाइनल रैंक मिलेगी, आपकी मेरिट लिस्ट। तो जब तक आपको आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक नहीं मिल जाती है, एसएमएल नहीं मिल जाता फाइनल, तब तक आप कुछ नहीं पता लगेगा आपको कि किस कॉलेज में क्या हो सकता है। उसके बाद 22 तारीख को डिटेल्ड कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स विल बी अवेलेबल। यानी 22 तारीख को आपकी वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सी चीज के लिए कितनी सीट्स फ्री हैं। तो 22 तारीख को स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद आपको सीट मैट्रिक्स आएगी। मतलब वो कोटा के साथ आएगी, मतलब ये एससी के इतने सीट है, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के ताकुर में 60 सीट्स है। हाँ सर, डिटेल वाइज आएगी, वो कॉलेज कैटेगरी वाइज आएगी। ओके सर। उसके बाद 23 तारीख को 23 टू 25 ऑफ दिसंबर ऑप्शन फॉर्म के लिए फर्स्ट कैप राउंड 1 टू बी फिल्ड ऑनलाइन। यानी 23, 24 और 25 तारीख को कैप राउंड 1 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल केवल 2 ही कैप राउंड है। ऐसा ही है क्या सर? 2 ही कैप राउंड है क्या आपके पास? हाँ, 2 कैप राउंड है, कैप 1 एंड कैप 2। हाँ, और तो जैसे आप 23 तारीख से आपकी कैप राउंड फिलिंग होगी। आपको उससे पहले क्या करना चाहिए, आप लोगों को हम लोग 22 तारीख के आसपास एक सेमिनार शायद और करेंगे अभी, तो उसमें हम लोग आपको ये बता देंगे कि देखिए कॉलेज की चॉइसेस कैसे भरते हैं और कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा करेंगे सर हम लोग? हाँ, वो कॉलेज कैसा सिलेक्ट करने चाहिए और वो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हम कुछ बनाएंगे उसमें अच्छे। जी जी। तो उनको वो एक करके कुछ बना के उसको टिक करके आप भर सकते हैं। जो रेकमेंडेड हम लोग बोलेंगे वो वहाँ पे टिक कर लेंगे वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग तो एसएमएल के ऊपर रहेगा ना, अभी कुछ बोल नहीं सकते तो एसएमएल हम क्या लोग एक आता है। काम करेंगे सर कि 23 तारीख की मॉर्निंग में हम लोग एक सेमिनार रख लेंगे, वेबिनार। ठीक है, उसमें हाउ टू चॉइस द कॉलेज की चॉइस के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो 22 तारीख की शाम को या 23 तारीख की सुबह हम लोग एक सेमिनार करेंगे। उसमें आपको आपकी जानकारियां जो आप चाहते हैं वो सारी की सारी उसमें मिल जाएंगी। कॉलेज वगैरह हम बता सके, पर कैसे ना चॉइस कैटेगरी सर, वो उसको क्या पर्सनली क्या अप्लाई करना चाहता है। वो माइनॉरिटी में जाना चाहता है, टीएफडब्ल्यू में जाना चाहता है, या तो कोई रिजर्वेशन में, तो वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते सर कि अभी तो आप केवल फॉर्म भरिए। और प्लीज एक तो है ना, सबसे पहले चिंता करना छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मेरा ये होगा।
जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आती है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज फॉर्म भरिए बस खाली, उससे पहले आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो वी आर गिविंग इट ए रेस्ट नाउ एंड थैंक यू मिलिंद सर, आपने बहुत टाइम दिया एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। स्टूडेंट्स को भी थैंक यू, पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं करी है किसी ने, आपकी बार मतलब जो ना सब लोगों ने ध्यान से पूरी बात सुनी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जस्ट 1 मिनट सर, बिफोर यू क्लोज डाउन, ये फॉर्म भरते समय और किसको कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे देखो, मैंने जो स्लाइड ओपन किया है ना, ये तो देखो यहाँ पे न्यू लिखा है ना, ये कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग यूजर मैनुअल मराठी एंड इंग्लिश में दिया है, तो दे कैन लुक आउट फॉर दिस आल्सो, जी two things, Marathi or English. You will get some thing read, you can read from here, so if you have any complications while filling the forms. नाउ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और परेशान मत होइए, ठीक है? तो आई वुड से अगेन बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, 22 तारीख या 23 तारीख को मिलते हैं, ठीक है? Okay, ओके सर, okay, thank you everybody. थैंक यू सर, थैंक्स टू एवरीवन।